Hello guys, this is Gurjap and today we are continuing our chapter of limits and derivatives, and today we'll be talking about derivatives. So derivative means the amount by which a function is changing at one given point, or the rate of change of a function is called derivative of that function. Now, proper definition of mathematics says, suppose f is a real valued function. Suppose f is a real valued function and a is a point in its domain of definition, then derivative of f at point A is given as limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. This is how we write limit of a function mathematically, and it is denoted by f dash x. Now let's dig into some example to further understand it. So in this example, we have to find derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. So f of x is equal to x square minus 2a is equal to 10. So its derivative will be equal to limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. अब यहाँ पे हम डायरेक्ट h की लिमिट 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. वी डोंट वांट दैट. सो f ऑफ a प्लस एच क्या होता है? f ऑफ x में हम x की जगह क्या पुट करेंगे? a प्लस एच. सो f ऑफ x क्या था? x के माइनस 2, x की जगह a प्लस एच आया, हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ a क्या हो जाएगा? x की जगह 2, सॉरी a, सो a स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाय h विच इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 a plus h whole square a square plus h square plus 2ah minus 2 minus a square plus 2 divided by h plus 2 से minus 2 cancel minus a square से a square cancel, we get limit h approaches to 0 h square plus 2ah divided by h. अब न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स के पास h है, कॉमन ले लो, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू h प्लस 2a डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल. अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि h 0 आ जाएगा, होल टर्म 0 नहीं होगी. सो वी गेट फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास, h 0 पुट करा 0 प्लस 2a विच इज इक्वल टू 2a एंड हैज द रिजल्ट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ 19x at x is equal to 90x at x is equal to 100. So f of x in this case is equal to 90x, a is equal to 100. Derivative will be equal to limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, which is equal to a plus h means 90 into a plus h, which is equal to limit h approaches to 0 f of a plus h means 90 into a plus h. a हमारे पास 100, so 100 plus h minus f of a means a की जगह x की जगह क्या आ जाएगा? 100, so 90 into 100. इसको यहीं पे छोड़ते हैं divided by h, which is equal to limit h approaches to 0, ब्रैकेट ओपन करा, 90 into 100 plus 90 into h minus 90 into 100 divided by h. 90 into 100 से 90 into 100 कैंसिल, एक माइनस का था एक प्लस का, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 90 into h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, सो इसकी लिमिट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 90 एंड हैज द रिजल्ट. सो थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1. f ऑफ x क्या है हमारे पास? x, a क्या है हमारे पास? 1. सो लिमिट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा? एक्स की जगह डायरेक्ट ए प्लस एच, ए हमारे पास 1,
प्लस एच माइनस एफ ऑफ क्या आ जाएगा एक्स की जगह 1, सो 1 डिवाइडेड बाय एच, 1 से 1 कैंसल, वी हैव लिमिट h approaches to 0 h by h which is equal to limit h approaches to 0 into 1 which is equal to 1 and hence the result. So the first example is we have to find derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. So here f of x is equal to x square minus 2 and a is equal to 10. So derivative क्या होता है, limit h approaches to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 10 पुट कर दो, वी गेट नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एक्स में हम एक्स की क्या पुट कर देंगे ए प्लस एच, सो एफ ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह ए प्लस एच, सो ए प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए, सो ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच लिमिट h अप्रोचेस टू 0. अभी की वैल्यू हमारे पास 10 पुट कर दो, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय h. अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 20 h माइनस 2 माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करा, क्या आ गया हमारे पास 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाय h. अब 2 पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसल, 100 नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर प्लस 20h डिवाइडेड बाय h. h कॉमन ले लो यहाँ पे न्यूमिनेटर में, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसल, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 20 लिमिट पुट करा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 20 एंड हेंस द रिजल्ट. Now till now we knew how to find derivative of a function at a point A. Now suppose we have to find the derivative of a function in total. So we say f is a real valued function. So its derivative will be written as limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. इसको बोलते हैं हम derivative of a function by first principle and it is equal to f dash x. इसको f dash x से डिनोट करते हैं और we also denoted by d by dx of fx. This means derivative of function fx, or we can also denote it by capital D of fx. इनका मतलब सेम होता है, this means derivative of f of x, this also means derivative of fx and this also means derivative of fx function. Now let's look at some examples. Now we have to find derivative of these functions using first principle. So here f of x is equal to x square minus 27, so its derivative f dash x will be equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, which is equal to limit h approaches to 0. Now f of x plus h means x के जगह x के क्या आ जाएगा x plus h, so x plus h square minus 27, this is f of x plus h minus f of x क्या होगा हमारे पास x square minus 27 divided by h, which is equal to a plus b whole square. Limit h approaches to 0 x square plus h square plus 2 xh minus 27 ब्रैकेट ओपन करा माइनस x square और प्लस 27 डिवाइडेड बाय h. अब 27 नेगेटिव का भी है पॉजिटिव का भी है, कैंसल, x square भी नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, सो कैंसल. सो वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h square माइनस 2xh डिवाइडेड बाय h. अब न्यूमिनेटर में h दोनों के पास है, कॉमन ले लो. हमें क्या करना है, हमें बस डिनोमिनेटर से h हटाना है किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करा तो ये हमारे पास हमें नहीं चाहिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी. सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h कॉमन आया h स्क्वायर माइनस h माइनस
2x डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसल। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, h माइनस 2x। अगर मैं लिमिट पुट भी करता हूँ मेरे पास क्या बनाएगा, 0 माइनस 2x, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी, सो वी हैव 0 माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 2x, सॉरी, which is equal to 2x, and hence the result. Now we have to find derivative of 1 by x square. So f of x is equal to 1 by x square, and f dash x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, which is equal to limit h approaches to 0. अब f of x plus h क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस h होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। इसका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एच, विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। तो इसको ब्रैकेट ओपन करा, वी हैव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर minus 2xh divided by x square x plus h square divided by h, x square से x square कैंसल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होगा यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h square minus 2xh divided by x square into x plus h होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ से क्या करो, h कॉमन ले आओ, वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h, h आ गया कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया अंदर, -1 माइनस 2x माइनस h माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अब इस h से ये वाला h कैंसल, डायरेक्ट लिमिट पुट करो, वी गेट -0 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -2x अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, एक x एक पावर कैंसिल हो गई, वी गेट -2 अपॉन x क्यूब, and hence the result. Now let's talk about the algebra of derivatives. So first one is एडिशन। तो अगर दो फंक्शन एडिशन में है और हम दोनों का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैसा आता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंपल, जैसे नॉर्मल एडिशन होती है, सेम गोज फॉर सब्सट्रैक्शन। तो अगर दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन में है, उनका डेरिवेटिव हो रहा है, तो विल गेट d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये दोनों तो बहुत ईजी थे। नाउ द टफ पार्ट बिकम्स, नाउ द डेरिवेटिव इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अ बिट ट्रिकी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, व्हाट वी डू, लेट्स से दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। सो द रूल टू डू इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन नॉर्मली प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, सेकेंड है जी ऑफ एक्स, पुट कर दो, वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ईजी, बस आपने ये रूल फॉलो करना है। दो फंक्शंस हैं, एक को फर्स्ट बोल दो, एक को सेकंड बोल दो, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। नाउ सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट सॉरी, डेरिवेटिव व्हेन टू फंक्शंस आर इन डिवीजन। तो इस केस में भी फर्स्ट को दे दो, न्यूमिनेटर को दे दो आप फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर को बोल दो आप सेकंड फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड
जैसा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था न्यूमिनेटर वैसे चलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकेंड। सो पुट कर दो वैल्यूज, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ g of x divided by g of x whole square. So these were 4 rules for algebra of derivatives that we'll be using in this chapter. There's another theorem, important one, which says that if you have derivative of any number d by dx of x raised to power n, अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है, वेरिएबल आता है, उसकी कोई पावर है, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका रूल होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये आती है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव एक्स रेज टू पावर 7, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 7, n पहले आ गया, पावर पहले, x इंटू पावर माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। रियली इजी। ना सपोज इसके साथ कोई नंबर पहले से मल्टीप्लाई हो रहा हो, वी हैव 2 एक्स रेज टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, इस रूल से वी गेट d बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू पावर 5। हमने सेम रूल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट अगर हमारे पास कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को करते हैं, पहले ले आते हैं, कांस्टेंट पहले लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 5 विल बी इक्वल टू 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू इसका क्या आएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n क्या हमारे पास 5, सो 5 into x raised to power 5 minus 1 which is equal to 2 into 5 raised to power 4, 5 to the 10, 10 into x raised to power 4. So अगर आपके पास कोई नंबर है, वेरिएबल है सॉरी, जिसकी कोई पावर है n, उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, एंड अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, d बाई डी एक्स a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, फिर वही फॉर्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, now let's look into some examples. Now we have to find derivative of these 3 examples. Okay, first one is x raised to power n plus a into x raised to power n minus 1 plus a square x raised to power n minus 2 up to so on a raised to power n minus 1 into x plus a raised to power n. तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, d by dx of x raised to power n plus a x raised to power n minus 1 plus a square x raised to power n minus 2 up to so on a raised to power n minus 1 into x plus a raised to power n. अब इसमें क्या करेंगे हम, एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, एडिशन वाला, सबका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। सो वी गेट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस a प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर n। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, वो वाला फॉर्मूला दैट d बाई डी एक्स ऑफ, हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सो वी गेट इसका क्या आ जाएगा, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a कॉन्स्टेंट है, साइड में आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा a इंटू n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, माइनस 1 बिकम्स n माइनस 2 प्लस कांस्टेंट बाहर आ गया, a स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 का क्या आ जाएगा n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है हमारे, सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। सो वी गेट a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल कोई है नहीं हमारे पास x, तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0, सो वी गेट 0 इंटू ए रेज टू पावर n 0। सो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1 x प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 plus up to so on a raised to power n minus 1. That's it. This is the result for first example. Now second example is x minus a into x minus b. तो इसका डेरिवेटिव होगा d by dx of x minus a into x minus b whole bracket which is equal to d by dx of
ये ब्रैकेट दोनों ओपन कर दो, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, अब दोनों के पास क्या है, x कॉमन है, कॉमन ले लो, वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। कूल। तो अब क्या होगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज, यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सो वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। ओके, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला रूल यूज़ करके 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया, ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लास्ट क्या हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी, फिर से कांस्टेंट बाहर ले लो, प्लस ए बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास क्या आ गया एंड रिजल्ट, 2x माइनस ए प्लस बी प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2x माइनस ए प्लस बी। Okay, our next example is we have to find derivative of x minus a upon x minus b। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस b। अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन डिवीजन में है, सो विल यूज़ द डिवीजन रूल। इसको बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल रहा हूँ सेकेंड फंक्शन। तो डिवीजन रूल क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास x माइनस ए, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए इंटू सेकेंड क्या है हमारे पास, x माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव दो का और है, ओपन कर दो ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आ गया 1, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, वी गेट एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वी गेट माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर एंड हैज द रिजल्ट। एंड नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2x माइनस 3/4। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3/4 will be equal to d by dx of 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/4 विच इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/4। कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। सो वी गेट 2 एज एन आंसर एंड एज द रिजल्ट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। अब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, सो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, सो वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या हमारे पास, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू सेकेंड 5 प्लस 3x प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू, अब एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 1 5x प्लस 5 प्लस 3x सॉरी प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस 3x क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 3।
which is equal to minus 3 into x raised to power minus 4, 5 plus 3x plus x raised to power minus 3. Now multiplying minus 3x raised to power minus 4 with these two terms, we get minus 3 into x raised to power minus 4 multiplied by 5, we get minus 15 x raised to power minus 4 plus minus 3x raised to power minus 4 into 3x, we get minus 3 3s are 9 x raised to power. अब यहाँ पे क्या होगा, x raised to power minus 4 into x raised to power 1. सेम बेस पावर क्या होती हैं, ऐड, सो माइनस 4 प्लस 1 और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, x raised to power minus 3 plus x raised to power minus 3 which is equal to minus 15 x raised to power minus 4 minus 9 x raised to power minus 3 plus यहाँ पे आएगा 3x raised to power minus 3 which is equal to 15 x raised to power minus 4 minus 6 x raised to power minus 3 and hence the result. Now we'll find derivatives for trigonometric functions. Rule same होते हैं. In this case we'll use first principle and the first example is we have to find derivative of sine x. So d by dx of sine x will be equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. First principle, simple. So put the value, we get limit h approaches to 0 f of x plus h क्या होगा, sin of x plus h, sin x plus h minus sin x divided by h. अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आ गया sin a माइनस sin b जिसकी वैल्यू होती है 2 cos a plus b by 2 माइनस इंटू साइन a minus b by 2, ये होती है इसकी वैल्यू. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट लिमिट h approaches to 0 2 cos a plus b that is x plus h plus x by 2 minus sin x plus h minus x by 2 divided by h which is equal to limit h approaches to 0 2 cos 2x plus h by 2 sin h by 2 x कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय h. अब ये वाला 2 क्या आ जाएगा, इसको हम h के साथ डिनोमिनेटर में ले सकते हैं. सो वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2. यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को ले गया h के साथ डिनोमिनेटर में. अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे तो ये डिनोमिनेटर किसी के साथ भी जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको यहाँ ले आए. अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हम दोनों की लिमिट अलग कर देंगे. वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x plus h डिवाइडेड बाय 2 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2. ये कौन सी फॉर्म आ गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x वाली फॉर्म. तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1. और यहाँ पे अगर मैं h 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, cos 2x plus 0 अपॉन 2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई 1 दैट इज 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, वी गेट cos x and as the result. So derivative of sin x is equal to cos x. Now we have to find the derivative of sin square x. Now sin square x can be written as sin x into sin x. So its limit will be equal to its derivative will be equal to d by dx of sin square x is equal to d by dx of sin x into sin x which is equal to d by dx of. अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो जो फॉर्मूले वाला मेथड था, ओके, मतलब प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन विल बी d by dx ऑफ sin x इंटू sin x प्लस sin x इंटू d by dx ऑफ cos x. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के फाइंड आउट करा दैट d by dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x. क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव पता था तो हमने ये वाला रूल डायरेक्ट अप्लाई कर दिया. सो
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होना है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज अगेन कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स cos x which is equal to 2 times sin x cos x. So we can say derivative of sin square x is equal to 2 sin x cos x, and hence the result. Now in this example we have to find derivative of 5 sin x minus 6 cos x plus 7. We'll be using first principle, so its derivative will be limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, which is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h क्या हो जाएगा, 5 sin x plus h minus 6 cos x plus h plus 7, f of x क्या हो जाएगा, 5 sin x minus 6 cos x plus 7 ओन था, लेकिन नेगेटिव साइन था होल ब्रैकेट के बाद, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स, 5 sin x plus 6 cos x माइनस 7 डिवाइडेड बाय h. नाउ 7 से 7 कैंसिल. अब साइन की टर्म्स और कॉस की टर्म एक साथ ले लो. वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 साइन x प्लस h माइनस साइन x, 5 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, माइनस 6 कॉमन ले लिया, कॉस x प्लस h माइनस कॉस x प्लस 6 प्लस h कॉस x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय h. तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की लिमिट अलग अलग ले लेंगे. सो वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h 5 साइन, 5 भी बाहर ले आते हैं, साइन x प्लस h माइनस साइन x प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 अपॉन h cos x प्लस h माइनस cos x. सो अब हमारे पास दो फंक्शंस आ गए अलग अलग, दोनों की हमने लिमिट निकालनी है. ओके, सबसे पहले इसकी निकालते हैं. लेट्स कॉल इट फर्स्ट, लेट्स कॉल इट सेकेंड. नाउ सॉल्विंग फर्स्ट वी गेट 1 इम्प्लाइज. अब सब पहले हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो इस ऐसे ईजी हो जाएगा. तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 अपॉन h इंटू, अब साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स इज ऑफ द फॉर्म साइन ए माइनस साइन बी. तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 5 upon h into 2 cos 2x plus h by 2 into sin h by 2. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये h यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2 को हम अंदर ले आएंगे. तो वी गेट लिमिट h approaches to 0 2 cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 डिवाइडेड बाय h. 2 इसके नीचे आ जाएगा, h by 2 बन जाएगा यहाँ पे. तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों की हम लिमिट अलग अलग कर देंगे. तो इस केस में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल. और यहाँ पे जब मैंने लिमिट पुट करी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो वी गेट cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 मल्टीप्लिकेशन में था. सो फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू क्या जाएगी, 5 cos x के इक्वल. ओके, या ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू. और सेकंड फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव साइन होना था, तो अब करते हैं हम सेकंड फैक्टर. अब सेकंड फैक्टर में हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 अपॉन h cos x प्लस h माइनस cos x.
नाउ वी नो cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, we get 6 into limit h approaches to 0 1 upon h cos a cos b cos x plus cos x cos h minus sin x sin h minus cos x divided by h. cos x दो टाइम्स है, इनको कॉमन ले लो, वी गेट 6 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h cos x कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस cos h माइनस डिवाइडेड बाय h माइनस sin x sin h डिवाइडेड बाय h. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, सॉरी मैंने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप में, सो वी हैव दोनों की लिमिट में अलग अलग कर रहा हूँ. सो 6 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x इंटू 1 माइनस cos h अपॉन h माइनस साइन x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू साइन h अपॉन h. ओके, तो इस केस में वी नो cos x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस cos h अपॉन h से, और sin x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है sin h अपॉन h से. अब यहाँ पे भी इन दोनों की लिमिट अलग कर दो, इन दोनों की भी लिमिट अलग कर दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, विल गेट 6 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x इंटू सॉरी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h, और यहाँ पे क्या है मेरे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin x इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन h. अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन h किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन सॉरी एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल. तो ये होल फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास sin x. सो वी हैव सेकेंड वेक्टर में 6 भी था तो -6 sin x, तो सेकेंड वेक्टर मेरे को दे रहा है -6 sin x. सो डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x -6 cos x plus 7 will be equal to 5 cos x minus 6 sin x, and hence the result. So guys, this was it for today. If you have any problems regarding limits and derivatives, you can leave them down in the comment section. Next time we'll begin with a new chapter. Till then, keep practicing.